Today we are going to discuss what democracy and why democracy. Class 9, chapter 1st, political science. Look, when we got freedom on 15th August 1947, then the biggest task in front of us was to decide the form of government, which type of government we want. There are many type of government like democracy, monarchy, army rule, dictatorship. Then our forefathers, they decided to choose democracy as the form of our government. Why? Because monarchy, army rule, dictatorship, in these forms we do not have the power to decide for ourselves. The decision making ही एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से हमने डेमोक्रेसी को चूज़ किया. डेमोक्रेसी में पीपल्स हैव द पावर टू डिसाइड फॉर देयर सेल्व्स, बट इन मोनार्की द मोनार्क और द king has the power to decide for all and everyone has to follow that. In army rule, army officers have to decide for their selves. And in dictatorship, dictator is one who decide for everyone and everyone has to follow that. If they do not follow, then they will be punished. Right? Monarchy, army rule, dictatorship and many other type of form of government are there, but these are the main. So our forefather, they decided to choose democracy, in which the people have the power to choose their rulers. They cannot rule directly, but they can rule indirectly through their representative. In democracy is the form of government in which people elect their ruler. It is the form of government in which people elect their ruler. Form of government we see here, बहुत सारी form of government है. Monarchy, army rule, dictatorship, democracy, in which we choose democracy as our form of government. And then people. Now we have to just do not mug up this definition that democracy is the form of government in which the people elect their ruler. Just try to understand each and every word what it means. The form of government we know. Different type of form of government in which we choose the democracy. Democracy is the form of government in which people elect their ruler. Now who are the people? In our country there are many generations like elderly, children's, women's, like SCs, STs, many type. Now who has the power to elect their rulers? Right? The people are those who have the power to elect their rulers. In our India, every adult has the power to choose their ruler. Right? Universal adult franchise. Right? Every adult, everyone who is above the age of 18, they can elect their ruler. But there are many countries in which women do not have power to choose their rulers, in which the people who are poor, they are not eligible, in which there are some countries in which there are illiterate people, they are not able to choose their rulers. But in our country, everyone above this age, they can elect their ruler. Now you know who are the people? Everyone who is above the age of 18. But there are many countries in which this criteria is not eligible. There are women who cannot vote. There are SCs, STs who cannot vote. Right? There are poor peoples, they cannot vote. And elect. How to elect? There are election. Through election we choose our ruler, right? Through election. Now these elections should be free,
and fair, right? Free and fair, we will see this in later. And ruler, who will be the ruler? What will be the power of ruler? Which type of decision they can take for us? जो elected हैं, elected and non-elected. Elected have what the elected has the power, what non-elected has the power, right? We have to decide all this before we form our constitution. In our constitution, all these things are described. The ruler, they should be elected or non-elected, which type of people they can choose their rulers, the election should be free and fair, the form of government should be democracy, right? Non-elected are the appointed one. Now who are the appointed? Appointed means that government officials like collectors, deputy collectors, right? RAS, IAS, IPS officers, they have the power of decision making. We know our collector, right? He has the power to make decisions in our district. So they are not elected, they are appointed. So what is their power? What is the power of elected member like MLAs, MPs, ministers? What is their power, right? All these things we have to decide. Then we find democracy that fit in our country, the form of government in which people elect their ruler. Now these are some minimum criteria which every democracy, like we are in that era when every country wants to called as a democracy. हर country चाहती है कि उसको democracy बुलाया जाए, तो उसके लिए minimum criteria क्या होना चाहिए? What should be the minimum criteria that a country can be called as a democracy? Decision making power, that decision making power that make difference between different form of government, right? We have learned that before, the decision making power that make the difference between different form of government. In democracy, the decision making power should be in the hand of elected ruler whom we elect, right? Through direct or indirect election. Through direct election we choose our ruler as MPs, MLAs. They are our representative and they elect our prime minister, different ministers, they are appointed by prime minister. So elected ruler should have the final decision making power. Who is the elected ruler? The person which we choose to be our ruler, right? Like prime minister, the MPs, MLAs, right? So the main decision making power should be in our elected ruler. But what happens with Pakistan? Pakistan में क्या हुआ था? Both countries, Pakistan and India, they got separated at the time of when we get independence. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए थे और दोनों ने ही डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, राइट? डेमोक्रेसी को पाकिस्तान एंड इंडिया both adopted democracy as a form of government. But what happened with Pakistan? In 1999, जनरल मुशर्रफ करके एक आर्मी ऑफिसर था जिसने मिलिट्री कूप के थ्रू पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को रिवोक कर दिया. पाकिस्तान डेमोक्रेसी वॉज रिवोक्ड बाय जनरल मुशर्रफ थ्रू मिलिट्री कूप इन 1999. वहाँ की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई. वहाँ पर जो लोगों को राइट था टू चूज देयर रूलर्स, दैट वाज फिनिश्ड. फिर उसके बाद क्या हुआ? In 2002, he issued a referendum. Referendum means it is a type of document which is issued by the ruler for their people to give their consent. मतलब कि एक जो राजा होता है, राजा एक तरीके का एक पेपर निकालता है जिसमें वो अपने रूल्स वगैरह लिख देता है. फिर पीपल जो होते हैं, जो लोगों के लिए वो वोट करने को दे देता है कि उसमें से लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन कौन सी नहीं है. बट दैट रेफरेंडम वॉज नॉट ऑल्सो
ऑन द फेयर प्रैक्टिसेस। रेफरेंडम में भी उसने बहुत सारे गड़बड़ घोटाले कर दिए थे, तो उस वजह से वहाँ पर पूरी तरीके से मिलिट्री का राज हो गया था। लेकिन वहाँ के जो पीपल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको रिवॉल्ट किया, उसका विरोध किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इन अगस्त 2002 उसने डिसाइड किया कि वहाँ पर एक इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन इलेक्शन में भी क्या होगा कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो भी इलेक्टेड होंगे, उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। जिनको लोगों ने चुना होगा उनके पास भी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। उनके ऊपर भी मिलिट्री ऑफिसर जो होंगे वो रूल करेंगे। तो टोटल राज किसका हो गया? मिलिट्री ऑफिसर्स का। इलेक्टेड पीपल्स के पास तो कोई पावर ही नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग पावर रूलर जो इलेक्टेड है उनके पास तो नहीं रही। तो क्या हम उस फॉर्म को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नो, राइट। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मेन डिसीजन मेकिंग पावर, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी वेस्टेड विद द इलेक्टेड रूलर, इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। जो रूलर होगा, जो इलेक्टेड रूलर होगा, उसी के पास में फाइनल पावर होगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ था? द पावर गोज टू मिलिट्री ऑफिसर्स। जो सारी मिलिट्री, जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन्हीं के हाथ में मेन पावर थी। वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन तो करवाए थे, वहाँ पर उन्होंने इलेक्टेड, उनके रूलर्स भी थे, लेकिन उन रूलर के पास में मेन पावर नहीं थी। तो डिसीजन मेकिंग पावर पाकिस्तान में इलेक्टेड रूलर के पास में नहीं थी। तो दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, राइट, बट द पावर इज नॉट इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रूलर। This is the main first criteria for the democracy, that the decision making power should be vested with the elected ruler. Then second, now which type of election? हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो इलेक्टेड रूलर के पास में होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि पीपल जो है वो अपने रूलर को इलेक्ट करे। दैट इज द मेन क्राइटेरिया। डेमोक्रेसी का मतलब ही वही है कि जो लोग हैं वो अपने रूलर को इलेक्ट करें। फिर सेकंड क्या बात हो गई कि जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन किसके लिए? उनके पीपल्स के लिए। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज, एक्ट्स जो भी हैं वो जो हमारे इलेक्टेड रूलर हैं वही बनाएं। दे कैन अंडरस्टैंड आर बेटर, राइट। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इलेक्टेड रूलर के पास में होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इलेक्शन। इलेक्शन कैसा होना चाहिए? व्हाट हैपन्स विद चाइना एंड मैक्सिको? यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी इलेक्टेड रूलर के पास में है, राइट। व्हाट हैपन विद चाइना? चाइना में इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल्स रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, और जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी रूलर के पास में ही है। लेकिन जो ये रूलर इलेक्ट हो रहे हैं जिस मेथड से, वो मेथड राइट नहीं है। दैट इज नॉट द राइट मेथड। यहाँ पर एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पर एक, दिस इज द मेन रूलिंग पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब इस पार्टी के कंसेंट के बिना कोई भी आदमी, कोई भी इंसान वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता अगर ये पार्टी उसको कंसल्ट ना करे, अगर उसको परमिशन ना दे तो कोई भी इंसान इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी की जो पावर चल रही है। लेकिन अपने इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, many BSP, right, SP, there are many parties, right, innumerable, मतलब different, many party, multi party, more than 3 multi party. But what happened with China? In China there is only one party, Chinese Communist Party. Without their consent no one can
नो वन कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन में पार्ट ही नहीं ले सकता अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अगर उनको परमिशन ना दे। तो हमारे पास क्या हुआ, इलेक्टेड रूलर भी मिल गया, हमने रूलर को इलेक्ट भी कर लिया, लेकिन हमारे पास चॉइस है, नो चॉइस, वी डू नॉट हैव चॉइस, राइट। अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं है, दिस इज अ टाइप ऑफ मोनार्की कि जो वो चाहेंगे वही बनेगा, जो ये पार्टी जिसको चाहेगी वही रूलर बनेगा, है ना। तो हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं बची। इलेक्शन में वी शुड हैव चॉइस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी देयर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। What happened with Mexico? अभी हमने चाइना का देखा जिसमें एक पार्टी का रूल था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कंसेंट देगी वही इलेक्शन लड़ सकता है, अगर वो नहीं देती किसी को परमिशन तो वो नहीं लड़ सकता। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ पर कोई भी अगर वो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर उसको पूरा करता है, दैट इज एज लिमिट और समथिंग ऐसा कुछ है, अगर वो उसको फुलफिल करता है तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन मेक्सिको में क्या है, वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है अपने इंडिया की तरह, लेकिन वहां पर जो रूलिंग पार्टी है PRI, इस रूलिंग पार्टी को छोड़कर दूसरी कोई भी पार्टी कभी जीतती नहीं है। क्यों नहीं जीतती है, क्योंकि ये फेयर प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, माल प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं, लाइक करप्शन, लोगों को घूस देना रहे, उनको डिफरेंट तरीके से उनको लालच वगैरह देकर अपनी तरफ कर लेते हैं, मीडिया को भड़काना, उनको डराना, डिफरेंट जर्नलिस्ट उनको बहुत ज़्यादा या तो पैसे देकर अपनी तरफ कर लेना या फिर उनको डरा धमका के उनको अपनी तरफ कर लेना। और जो वहाँ के टीचर्स वगैरह थे वो भी अपने स्टूडेंट्स के मदर फादर को कहते थे कि भाई आप भी हमारे ही इसी पार्टी को वोट दो। तो डिफरेंट माल प्रैक्टिसेस वर यूज्ड इन मैक्सिको। अब इनके पास क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज है, लेकिन जीत एक ही पार्टी रही है। रियल सेंस में तो इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो बाकी सारी पार्टीज हैं उनको ये किसी न किसी तरीके से बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करके, लाइक पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देना एंड टाइम पर, है ना, बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वो ऑपोजिशन पार्टी कभी जीत ही नहीं पाती है। तो उनके पास भी एक तरीके से एक ही चॉइस है और तो कोई चॉइस ही नहीं है। बट इन आर इंडिया every party has an equal chance to lose, even the ruling party has the equal chance to lose. फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मीन्स हर एक पार्टी को, जो भी रूलिंग पार्टी है उसको भी हारने का उतना ही चांस हो जितना एक लूजिंग पार्टी को है। कोई रूलिंग पार्टी है और एक ऑपोजिशन पार्टी है। अब रूलिंग पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं तो रूलिंग पार्टी को भी उतना ही चांस लूज का होना चाहिए जितना ऑपोजिशन पार्टी को है। ऐसा नहीं कि भाई अब तो तय हो गया है कि रूलिंग पार्टी जीतेगी जीतेगी, राइट। ऑपोजिशन पार्टी को भी जीतने का उतना ही फेयर चांस मिलना चाहिए। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी देयर। देन नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हमने इलेक्शन देख लिया, इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। 3 क्राइटेरिया देखे अब तक हमने डेमोक्रेसी के। व्हाट वी हैव सीन, लेट अस रिवाइज। देखो, शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, एट द इंडिपेंडेंस वी ट्राई टू अडॉप्ट वी डिसाइडेड टू अडॉप्ट द डेमोक्रेसी एज आर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग जो लोग होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं। पीपल्स इलेक्ट द रूलर, people elect their ruler. This is the form of government in which the people elect their ruler. The next is
जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो ना तो मिलिट्री के हाथ में होनी चाहिए, ना ही किसी एक आदमी के हाथ में होनी चाहिए, वो उन रूलर के हाथ में होनी चाहिए जिसको पीपल्स ने इलेक्ट किया है। द नेक्स्ट इज इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर मीन्स हर एक पार्टी को इक्वल चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी कई सालों से जीते जा रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसा कि चाइना और मैक्सिको में हुआ। चाइना में एक ही पार्टी का रूल था, मैक्सिको में मल्टी पार्टी थी, लेकिन जीतती एक ही पार्टी थी क्योंकि वो माल प्रैक्टिसेस का यूज करती थी, डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन का यूज करती थी। देन हु विल इलेक्ट रूलर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन आवर इंडिया, every adult, everyone who is above the age of 18, they have the power to elect their rulers, राइट? जो 18 से ऊपर का है वो अपने रूलर को इलेक्ट कर सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया में क्या था? विमेंस को पावर नहीं थी। 2015 तक विमेंस को पावर ही नहीं थी कि वो अपने रूलर को इलेक्ट कर पाएं। एक फिजी है, फिजी इज अ कंट्री जहाँ पर नॉन फिजियन जो इंडियन फिजियंस हैं, जो वहाँ जाकर बस गए हैं, अपने इंडिया के जो वहाँ जाकर फिजी में बस गए हैं, उनको वोट देने का इक्वल राइट नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है? 1 पीपल 1 वोट, एक आदमी एक वोट, चाहे वो 18 साल का हो या 60 साल का हो, राइट? एक इंसान को एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, SCs, STs, OBCs, जनरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी प्रॉपर्टी कितनी भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो PM हो या फिर कोई नॉर्मल मैन हो, राइट? सबको, चाहे वो विमेन हो या फिर 18 साल का कोई भी, 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान हो, उसको एक इंसान को एक ही वोट देने का अधिकार है। एक से ज़्यादा वोट ना तो एक से ज़्यादा ना एक से कम। एवरीवन हैज़ अ राइट टू 1 पीपल 1 वोट। बट देर आर मैनी डिफरेंट कंट्रीज इन विच देर आर कि जहाँ पर जो भी अमीर लोग हैं उनके वोटिंग की वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर है जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उस एक इंसान को 3 वोट्स देने का अधिकार होता है। लेकिन इन आवर कंट्री देयर इज 1 पीपल 1 वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट मीन्स 18 ईयर्स से अबव, यूनिवर्सल मीन्स कंप्लीटली, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए समान, राइट? 18 साल से ऊपर का जो भी है उन सब के लिए समान वोट देने का सबको अधिकार है। देन वी डिसीजन मेकिंग पावर समझ लिया हमने, इलेक्शन समझ लिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझ लिया। फिर है हमारे पास रूल ऑफ लॉ। देन दिस इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर डेमोक्रेसी। इफ एनी कंट्री if they want to called as a democracy, then these are some minimum criteria। ये आइडियल नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया है जिससे वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहा सकते हैं। उसके अलावा अगर ये किसी में कोई कंट्री की फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में अगर ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, जैसे चाइना है, मैक्सिको है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, अगर इनमें इलेक्शन भी हो रहे हैं तब भी ये डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि ये इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब है जैसे हमने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन में करप्शन हो गया, जैसे जिम्बाब्वे है, दिस इज अ कंट्री जहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल जिस पार्टी ने की थी, यहाँ पर जानू पीएफ ये पार्टी थी जिसने यहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल जीती थी, यानी कि इस देश को आज़ाद करवाया था इस पार्टी ने। तो उसके बाद में बस यही पार्टी बनती जा रही है क्योंकि ये यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं। जैसे मीडिया है, मीडिया का मतलब है अखबार या फिर टीवी चैनल्स पे जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो सिर्फ इसी पार्टी की बड़ाई करते हैं, तो उस वजह से बस यही पार्टी जीत। ये पॉपुलर भी है, ये इंसान या फिर ये जो पार्टी है ये पॉपुलर भी है, लोग इसको वोट भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये करप्शन यूज़ करती है, माल प्रैक्टिसेस यूज़ करती है, इसकी वजह से इसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बाकी सारी पार्टी की हार हो जाती है। तो देयर शुड बी सम रूल ऑफ लॉ, राइट? वहाँ पर कुछ जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बुक ऑफ रूल्स,
जो भी किसी कंट्री के जितने भी रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। हमारे इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, इलेक्शन कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो रूल ऑफ लॉ ये कौन तय करता है? हमारी जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट सिस्टम, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो भी होते हैं ये हमारे रूल ऑफ लॉ को कंफर्म करते हैं कि कहीं भी कोई भी माल प्रैक्टिसेस का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो कोई भी इलेक्शन है वो किसी भी तरीके से, कोई भी इलेक्टिव पार्टी है वो किसी भी तरीके से कोई भी माल प्रैक्टिसेस का यूज़ ना करे, ये हमारी जुडिशरी तय करती है। इट शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इस जुडिशरी पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ये कोई भी गलत डिसीजन ले ले। तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट, सबके लिए एक जैसी। These are some minimum criteria for democracy, a country in which the form of government in which the people elect their ruler, right? This is the definition of democracy, and these are the some minimum criteria. A country, if it wants to be called as a democracy, then it has to fulfill these criteria. Thank you.